Good morning, dear children. In EVS, we had read our chapter, The Community Helpers, and you all have done the activity where you dressed up as community helpers and spoke about them. That was a very nicely done activity, and I hope you all know the importance of the community helpers now, right? सबको समझ आया community helpers हर किसी member की, कोई भी हो, चाहे वो garbage collector है, ग्रीन ग्रोसर है, वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कोबलर्स हैं, एनीवन, स्वीपर्स, कंडक्टर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी इम्पोर्टेंस है एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट एनी ऑफ देम, राइट? वी ऑल नीड देम because they are performing different tasks for us that we cannot perform ourselves, right? So let's do the exercises of the chapter now. Now our first exercise is you have to name the community helper. Who will help us when we want to get clothes stitched? If we want to get our clothes stitched, तो हमें किसके पास जाना होगा? Who will help us? It will be a tailor. That's one word answer. I'm writing tailor. Fine. We have fever. डॉक्टर, राइट? फीवर होगा तो कहाँ जाएंगे हम? डॉक्टर के पास. वी वॉन्ट अ हाउस पेंटेड. इट विल बी अ पेंटर. हाउस को पेंट कराना है तो किससे कराएंगे? पेंटर. वी आर वेटिंग टू रिसीव अ लेटर. पोस्टमैन. A postman brings letters for us. We want to get a haircut. We'll go to a hairdresser, right? Fine. Let's move on. Write T for true and F for false. A gardener delivers letter. A gardener delivers letters. बताइए, gardener letter deliver करता है हमें? Yes or no? No, it's false. False मतलब गलत है. So we'll write F. Who delivers letters? A postman delivers letters. अभी किया ना हमने, postman हमें letters delivers करता है. And what does a gardener do? A gardener takes care of the plants, right? Nurses assist doctors. Assist means help करना. नर्सेस डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं. यस और नो? यस. ट्रू. ट्रू मीन्स राइट. सो विल राइट टी ओवर हियर. अ हेयर ड्रेसर बेक्स ब्रेड. हेयर ड्रेसर जो है वो ब्रेड बेक करते हैं हमारे लिए. अ हेयर ड्रेसर, डज अ हेयर ड्रेसर बेक ब्रेड फॉर अस? नो, इट्स वेरी फनी. सोचो, हेयर ड्रेसर बेक करेगा? नो, बेकर बेक्स ब्रेड फॉर अस. हेयर ड्रेसर तो हमारा हेयर कट करता है, राइट? सो दिस इज फॉल्स. वी राइट एफ. अ ड्राइवर ड्राइव्स अ बस और अ कार एंड टेक्स अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रू. ड्राइवर ही तो ड्राइव करता है बस और कार को, राइट? ट्रू. फाइन. नाउ बेटा, दीज 3 क्वेश्चंस, part A, B and C, these we'll do in notebook. We'll do this in our next class. So we'll write in the notebook. For now, we'll do the work in our book only. If the tap in our bathroom starts leaking, we will call a. बताइए, we had done that. अगर हमारे बाथरूम में जो टैप है, नल है, वो लीक करना स्टार्ट करता है तो हम किसे कॉल करते हैं उसे ठीक करने के लिए? We'll call a doctor, farmer, teacher or plumber. We'll call a plumber, right? तो यहाँ आप टिक कर दीजिए. Put a tick over here. We'll call a plumber. Now on the next page, which of the following statements is incorrect? इनमें से कौन से statement जो हुए incorrect है? Incorrect means wrong. So जो ठीक होगा, जो करेक्ट होगा, we'll put a tick, and whatever is incorrect or wrong, we'll put a cross, right? We go to a police station if there is a theft. Theft means चोरी. अगर चोरी हो जाती है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं.
Is it correct or incorrect? It is correct, right? Okay, so I put a tick over here. Fine. We visit a doctor if we get hurt. हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें चोट लग जाती है. Yes, right? This is also correct. We visit a hairdresser to get a haircut. हेयर ड्रेसर के पास हेयर कट के लिए जाते हैं. Yes, this is also correct. None of them. कि इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. Yes, ठीक है ना. तो ये सारा इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. अब मैम ने यहाँ टिक आपको इसलिए लगा के बताया कि आपको पता हो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है. नॉर्मली आपको टिक नहीं लगाना है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी इनकरेक्ट होता तो हम उसको टिक करते. ठीक है, बट यहाँ तो ये सभी करेक्ट है, तो इसमें से हम कोई भी आंसर नहीं लेंगे. कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. एवरी लाइन इज करेक्ट, राइट? Now let's discuss. We have already discussed this. हमने पहले भी डिस्कस किया है. Again I am discussing. Just tell me the answer. What will happen if the garbage collector of your neighborhood goes on leave for 1 month? सोचिए, गार्बेज कलेक्टर जो भैया कूड़ा कलेक्ट करने आते हैं घर से, अगर वो 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए छुट्टी पर चले जाएं, लीव पर चले जाएं, what will happen? Think and tell. बताइए जल्दी से. जो हमने चैप्टर रीड किया था, we discussed that. सोचिए, 1 महीना अगर नहीं आएंगे भैया तो क्या होगा? द गार्बेज विल स्टार्ट स्टिंकिंग. बहुत फाउल स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, इजंट इट? देयर विल बी लॉट ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ओवर देयर. मक्खी मच्छर हो जाएंगे बहुत सारे. इट विल ऑल स्प्रेड डिजीजेस. बीमारियां लगेंगी हमें, बीमारी स्प्रेड करेंगी ये सब चीजें, जर्म्स होंगे, राइट? मम्मा को वो गार्बेज उठाकर खुद, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? मम्मा को गार्बेज उठाकर खुद कहीं जाकर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, इजंट इट? अगर वो नहीं आएंगे भैया तो 1 महीने के लिए आप बेटा सारा कूड़ा घर में नहीं रख सकते हैं, राइट? द गार्बेज हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ रेगुलरली, डेली. फाइन. So it would be very difficult. That's why the garbage collector is a very important part of our community. He is a very important community helper. Fine. And we must learn to respect all these community helpers. Now, discuss the reason why a farmer is important for us. This also we had discussed. Why is a farmer important for us? Because the farmer grows crops for us. अगर farmer वो खेतों में अनाज नहीं उगाएंगे, सब्जी और फ्रूट नहीं उगाएंगे, तो हम क्या खाएंगे? हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे. Isn't it? Everything that we eat comes from the farm. Fine. So that's why a farmer is very important for us. Why do we go to a doctor when we have fever? क्यों जाते हैं हम डॉक्टर के पास? So that the doctor can examine us properly and tell what is the problem and give the medicine accordingly. अगर हम अपने आप से कोई मेडिसिन लेके खा लेंगे तो शायद हम ना ठीक हो सकता है वो मेडिसिन हमारे लिए कोई नुकसानदायक मेडिसिन हो, कोई हमें नुकसान कर जाए, isn't it? That's why we should go to a doctor. हमें हर चीज की समझ नहीं होती है. We don't know कई बार कि हमें फीवर क्यों है या क्या हुआ है हमें. डॉक्टर टेल्स अस, है ना? डॉक्टर टेस्ट करते हैं. ही टेल्स अस कि what has happened to us and then gives us the medicine accordingly, right? Why do we need to be polite with all the community helpers? ये भी हमने बार बार डिस्कस किया बेटा चैप्टर में. हमें सभी कम्युनिटी हेल्पर्स के साथ पोलाइट क्यों होना है? Because they all are very important for us. They all play a very important role. हम सब काम खुद से नहीं कर सकते हैं, isn't it? ना हम आप सोचो हम सारे काम कैसे करेंगे? अगर आपको अपने लिए क्लोथ्स भी स्टिच करने पड़े, अपने लिए क्रॉप्स भी खुद उगानी पड़े, अपने शूज भी खुद से ठीक करने पड़े, है ना, अपने आप को पढ़ाना भी खुद ही पड़े और अपने आप का ट्रीटमेंट भी खुद ही करना पड़े, गार्बेज भी खुद ही अपना डिस्पोज ऑफ करके आना पड़े, ठीक है? सोचो सारे काम क्या आप खुद से कर सकते हो? डू यू नो हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स? नो, यू डोंट नो. सारी चीजें आपको करनी आती भी नहीं है और सारी चीजें आप खुद से कर भी नहीं पाओगे, ना इतना टाइम होता है, राइट?
तो दैट्स वाई एवरी कम्युनिटी हेल्पर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड दैट्स वाई वी शुड बी पोलाइट टू देम. अगर हम पोलाइट नहीं होंगे, उनके साथ बदतमीजी से बात करेंगे, सोचो आपने किसी से, गार्बेज कलेक्टर से या स्वीपर से या कंडक्टर से या ड्राइवर से, किसी से भी पोलाइटली बात नहीं की, गुस्से से बात की और वो नाराज होकर चले गए, तो आपको वो काम खुद से करना पड़ेगा ना. एंड अदरवाइज ऑल्सो, चलो वो नाराज होकर नहीं भी जाते हैं, देन ऑल्सो इट डजंट लुक नाइस, राइट. व्हेन दे आर डूइंग सो मच फॉर यू, ठीक है आप उनको पैसे देते हैं, नो डाउट आप उनको पैसे देते हैं, बट बेटा लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है. रिस्पेक्ट इज व्हाट यू शुड गिव देम. यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, राइट. एवरीवन हैज सेल्फ रिस्पेक्ट, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है. ओके, नाउ दिस एक्टिविटी वी ऑलरेडी डिड, है ना. जो हमारी कल मीटिंग हुई थी, यू ड्रेस्ड अप एज योर फेवरेट कम्युनिटी हेल्पर, सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस एक्टिविटी. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we'll do the 3 questions that we have left. We'll write them in the notebook and then you will memorize them, right? Till then, learn the exercises. Bye bye.